مسیح یسوع میں آپ تمام کو اس کے فضل و عرفان میں خوش آمدید۔ ایک مسیحی کا خدا کے فضل کو مسیح یسوع کے طفیل، مسیح یسوع کے وسیلے جاننا بڑا ضروری ہے، اس کا علم لینا بڑا ضروری ہے۔ فضل وہ قوت ہے، وہ قدرت ہے جس سے آپ کو حقیقی معنوں میں خدا کا علم، خدا کی پہچان اور خدا کی شناخت ملتی ہے کہ ایک مسیحی نے اس زمین پر رہتے ہوئے کس طرح گناہ، موت، ابلیس پر غالب آنا ہے۔ یہ آپ تب غالب آئیں گے جب آپ فضل کی پہچان لیں گے، فضل کی شناخت لیں گے، یعنی فضل کا علم آپ کی ذات کے اندر ٹھہرے گا، کیونکہ فضل وہ قوت ہے، وہ علم ہے جو آپ کے باطن پر اثر ڈالتا ہے، آپ کے دل پر، آپ کے جذباتوں پر کیا کرتا ہے، امپیکٹ ڈالتا ہے اور تبدیلی لاتا ہے۔ پہلے طور پر ہم فضل کو دیکھتے ہیں کہ فضل کے معنی کیا ہیں۔ خدا کا فضل وہ بے مثال احسان اور غیر مشروط محبت ہے جو خدا نے انسانیت کے لیے پیش کی ہے۔ فضل وہ بخشش، وہ نعمت، وہ مہربانی ہے جس میں خدا انسانوں کی کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اپنا احسان اور اپنی غیر مشروط محبت ظاہر کرتا ہے انسانیت پر۔ خدا کا فضل خدا کے رحم کو، خدا کی شفقت کو اور خدا کی قدرت کی نمائندگی ہے۔ یعنی خدا کے فضل کو جب آپ جانتے ہیں تو پھر آپ کے باطن میں خدا کا احسان جو ہے وہ اثر پذیر ہوتا ہے۔ جب آپ خدا کے فضل کو جانتے ہیں تو پھر خدا کا غیر مشروط اس کی جو محبت ہے وہ آپ کے باطن پر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب آپ فضل کو جانتے ہیں تو پھر آپ کے باطن پر خدا کی شفقت اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب آپ فضل کو جانتے ہیں تو پھر خدا کا رحم جو ہے وہ آپ کے بدن، آپ کے اس پر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے باطن پر، کیونکہ یہ باطنی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی قدرت ہے۔ اس لیے ہم آیت پڑھتے ہیں پہلا یوحنا کا 14ویں آیت کے اندر کیا فرماتا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ آمین۔ کیا لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا، یعنی وہ کلام جو ابتدا میں تھا، یعنی خدا مجسم ہوا، اس نے جسم لیا، تجسم ہوا، اس نے انسانی شکل، رنگ، روپ لیا۔ تو جب اس نے انسانی شکل، رنگ، روپ لیا تو پھر اس کے ساتھ فضل کا ہونا بڑا ضروری تھا، کیونکہ فضل وہ لینس ہے جس کے ذریعے آپ خدا کے احسان کو لیتے ہیں، جس کے ذریعے آپ خدا کی محبت کو لیتے ہیں، جس کے ذریعے آپ خدا کی رحم کو، جس کے ذریعے آپ خدا کی شفقت کو اور خدا کی قدرت کو لیتے ہیں، کیونکہ فضل خدا کی قدرت کی نمائندگی ہے، فضل خدا کی رحمت اور خدا کی شفقت کی نمائندگی ہے، جس کا ڈائریکٹ انسان کے باطن پر، انسان کے اندرون پر اثرات ہیں۔ تو اس لیے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ مجسم ہوا، تجسم ہوا، اس نے انسانی شکل، صورت لی، تو وہ فضل کے ساتھ، کس کے ساتھ جی؟ فضل کے ساتھ، تاکہ خدا کا احسان اس پر بنا رہے، خدا کی غیر مشروط محبت اس پر بنی رہے۔ یعنی یہ جو فضل نعمت ہے، یہ بخشش، جو مہربانی ہے، جو انسان کی کوتاہیوں کو، جو انسان کی غلطیوں کو نہ دیکھتی ہے، بلکہ انسان پر خدا کی محبت، خدا کی شفقت، خدا کا رحم اور خدا کی قدرت اور خدا کی کیا کہتے ہیں جی قوتیں، صلاحیتیں ظاہر کرتی ہے، خدا کی ذات کو ظاہر کرتی ہے، خدا کی پہچان دیتا ہے یہ، اور خدا کا علم دیتا ہے یہ، خدا کی شناخت دیتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں انسان لیتا ہے، فضل کو لیتا ہے، تو پھر انسان بڑے آرام سے گناہ پر غلبہ پا جاتا ہے، موت پر غلبہ پا جاتا ہے، ابلیس پر غلبہ پا جاتا ہے، یہ انہیں دبانے نہیں پاتے۔ اس لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ تم پر بادشاہی کرنے نہ
पाए, यानी मौत तुम पर बादशाही करने ना पाए, इब्लीस तुम पर बादशाही करने ना पाए। कब करने ना पाएगी? जब आप फजल की पहचान लेंगे, फजल का इल्म लेंगे। तो फजल को जानना, फजल का इल्म, फजल की शनाख्त लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि फजल ही सबसे बड़ा जो है वो मौज़ा है। फजल ही से आपका बातन जो है तब्दील होता है, फजल ही से खुदा की रहमत, खुदा की शफकत, खुदा का रहम, खुदा की मोहब्बत, खुदा का एहसान आप पर ज़ाहिर होता है। तो ये बुनियादी चीज़ें पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही वसीह अनवान है जिस पर हम डिटेल में आगे जाके सीखेंगे। फजल को अपनी ज़िंदगियों में लेना सीखें। लिखा है मसीह यीशु की बाबत के वो खुदा के फजल और हिकमत में बढ़ता गया और आदमियों में भी और खुदा की नज़र में भी मकबूल होता गया। वो मसीह यीशु की बाबत लिखा है कि खुदा के फजल और इरफान में बढ़ता गया। यानी मसीह यीशु जब इंसानी ज़िंदगी में थे, जब वो बचपन ही में थे, तो वो खुदा के फजल को पकड़े हुए थे, क्योंकि फजल और सच्चाई के साथ क्या वो फजल लिखा है, वो कलाम मुजस्सम और फजल से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, फजल से। तो इसलिए लिखा है कि वो खुदा के फजल में, खुदा की हिकमत में बढ़ता गया, क्योंकि फजल वो लेंस है जो आपकी कोताहियों को हटाएगा, आपकी गलतियों को हटाएगा, और खुदा के एहसान, खुदा की मोहब्बत, खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत जो है, खुदा का रहम जो है, और खुदा की क्या है जो शफकत है और खुदा की कुदरत जो है, वो आपके बातन पर काम करेगी और आप खुदा की ज़ात में, खुदा की शनाख्त में, खुदा की पहचान में आगे बढ़ते जाएंगे। और एक वक्त आता है कि आप उसमें कायम हो जाते हैं। इसलिए खुदा का फजल लेना बड़ा ज़रूरी है। खुदा के फजल को सुबह शाम अपनी ज़िंदगियों पर, अपने घरानों पर रिसीव करें, इस फजल को कबूल करें। कहें कि मेरे बदन में, मेरे बदन अमल, रूह अमल, अक्ल अमल, ज़िंदगी अमल, फ़ाज़ अमल, वेब्स, तसीरों, जज्बातों, एहसासों, काबिलियत, सलाहियतों, महारतों में, एनर्जी, तख्लीकी क़ुव्वतों, ज़ात में, तमाम मिनट, सेकंड, आवर, डेज़, वीक्स, मंथ्स, ईयर, साल और सदियों में ज़ाती, माली, ख़ानदानी, मुआशरती, मिस्री खिदमत के कारोबार, तमाम मामलात में मुकम्मल तो पर प्यारी बाप तेरा फजल मसीह यस्सु के नाम में रवा दवा जारी सारी कार फरमा ओन है। जब हम इस तरह फजल को रिसीव करते हैं और जब उस फजल को कबूल करते हुए, लिखा ये कबूलियत का वक्त है, कबूल करना है। जब हम कबूल करके उसे हम स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, तमाम चीज़ों में लेते हैं, तो फिर हम उसे एक्टिवेट करते हैं, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। और जब हम तसलसल से इस रवैये को अपना लेते हैं, हर रोज़ उसका फजल क्या है, बरकत को, उसके फजल को कबूल करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो वो फजल एक्टिवेट हो जाता है, वो फजल ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। तो आज का हासिल कलाम यही है कि फजल के ज़रिए खुदा का एहसान आपकी ज़िंदगी पर, आपके बदन, आपकी रूह पर, आपकी ज़िंदगी पर, आप उसकी शफकत, उसकी गैर मशरूत मोहब्बत, उसका रहम और उसकी कुदरत आपकी ज़िंदगी पर ज़ाहिर होगी जब आप फजल को रिसीव करेंगे, कबूल करेंगे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा फजल मेरी तमाम चीज़ों पर मौजूद है, मैं तेरे फजल में आगे बढ़ रहा हूँ। ये कबूलियत है, अपने आप को उस एक्ट में, अपने आप को उस रोल में लेके जाना। तो अपनी ज़िंदगियों में ये बहुत बड़ा एक लेसन है। अगर आप तब्दीली चाहते हैं, अंदर से बाहर तक तब्दीली आए, ज़ाहरन और अंदरूनन तब्दीली आए, तो फिर आज से फजल को रिसीव करें। फजल को रिसीव करके हर रोज़ उस फजल की अफर्मेशन बनाएं, यानी अनाउंसमेंट बनाएं कि मैं खुदा के फजल से ममूर, मेरा बदन खुदा के फजल से ममूर है, मेरी रूह खुदा के फजल से ममूर है, मेरी सोचें, मेरी गुफ्तगू खुदा के फजल से ममूर है, मेरे घराना, मेरे तमाम काम खुदा के फजल से ममूर हैं। तो देखें, जब आप मुसलसल ऐसा करना शुरू कर देंगे तो वो फजल की कुव्वत आपके बदन, आपकी रूह, आपकी अक्ल को, आपकी तमाम चीज़ों में इफेक्ट, असर दिखाना, इफेक्टिव होना शुरू कर देगी, एक्टिवेट होना शुरू कर देगी, और आप खुदा की गवाही देना शुरू कर देंगे। आपके बातन पर ये तब्दीली लाएगा। और ये बहुत बड़ा एक अनुमान है, इसमें मजीद हम जाके आगे सीखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियां लाता है फजल, किस तरह आपके अंदर काबिलियत, सलाहियतें, महारतें आपके अंदर पैदा करता है, किस तरह माली बुरहान दूर करता है और माली काबिलियत, सलाहियतें आपको देता है, किस तरह की कुव्वतें, ताकतें, सलाहियतें, सेहत, तंदुरुस्ती, रौनक को, ताजगी, इख्तियारात देता है, आपको दिलेरी देता है, इल्म और हिकमत देता है, खुदा की शफकत, कुव्वतों, ताकतों, तस्वीरों से आपको भर देता है ये फजल खुदा का। इसलिए लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। ये बहुत बड़ी कुदरत है फजल, इसको पहचाने, इसका इल्म लें, क्योंकि मसीह यस्सु भी जब इस जमीन पर इंसान रहते हुए आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने फजल को कबूल किया। वो फजल में लिखा है खुदा के फजल और हिकमत में बढ़ता गया। खुदा के फजल में आपको बढ़ना है, एक मसीह को, खुदा की बेटी और बेटे को खुदा के फजल में आगे बढ़ना है। वो फजल आपको गुनाह पर, अपनी कोताहियों पर, गलतियों पर, मौत पर, इब्लीस पर, दुनिया की रुकावटों, बंदिशों, तस्सीरों पर, कमी, कमजोरियों पर, नाइत्तफाकियों पर, लानतों, हिस्सों पर जो गलबा देगा वो आपको फजल देगा, क्योंकि फजल वो
लेंस है जिसके जरिए आप खुदा के साथ बने रहते हैं, खुदा के एहसान के साथ बने रहते हैं, खुदा के रहम के साथ बने रहते हैं, खुदा की शफकत के साथ बने रहते हैं, खुदा की मोहब्बत के साथ आप बने रहते हैं। फजल है वो कुव्वत जो खुदा ने इंसानों को दी है, ये गैर मशरूत मोहब्बत है, ये खुदा का एहसान है। यानी जब आप फजल को पहचानते हैं तो फिर आप खुदा के एहसान को पहचानते हैं, फिर आप खुदा की मोहब्बत को जो गैर मशरूत है उससे पहचानते हैं, फिर आपकी जिंदगियों में खुदा का रहम, खुदा की शफकत और खुदा की कुदरत जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कि मसीह का फजल को जानना, उस फजल की पहचान लेना, उस फजल को कबूल करना और कबूल करके शुक्रगुजारी में लाना, मुसलसल तसलसल से उसकी शुक्रगुजारी करना, हर रोज तवातर मतवातर में उस फजल को कबूल करते हुए उसकी अफर्मेशन करना, उसकी शुक्रगुजारी करने से एक मसीह खुदा के इल्म और इरफान और शनाख्त में, पहचान में बढ़ता है और एक हकीकी मसीह बनता जाता है कि मसीह के खुदा के बेटे और बेटे की सूरत पर वो ढलता जाता है। लिखा दुनिया के हम शक्ल ना बनो बल्कि मसीह की सूरत पर ढलते जाओ। आप मसीह की सूरत पर तभी ढलेंगे जब आप फजल को जानेंगे, क्योंकि मसीह यीशु भी खुदा की हिकमत और फजल में बढ़ता गया और जब वो इस दुनिया में आया भी कलाम मुजस्सम होकर, तो लिखा कलाम फजल से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। एक मसीह खुदा का बेटी और बेटा भी जब फजल को पहचानता है तो फिर वो क्या करता है, बदन रूह अकल में क्या करता है, तरक्की हासिल करता है और क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है। ये बहुत बड़ी कुदरत है, इसका अंदर से बातन से रूह के साथ कनेक्शन है। तो इसको अपनी जिंदगियों में अपनाएं, इसकी अफर्मेशन करें। बेशक हालेलुया, ये पूरा साल आपकी जिंदगियों में मसीह यीशु के नाम में मेरी दुआ है कि फजल से भरा रहे और आप फजल को जाने, फजल का इल्म ले, पहचान लें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।